Hello everybody. Good morning. Guys, is just connected. Is the audio clear? The screen visible also. Okay. Echo. I don't think it is echo. Okay, let's try. If it goes well. Otherwise, you can keep me posted. So, where do we stand? What we were up to last? We were doing some logistic regression, right? Were you able to complete the GLM part? And yes, maybe if there are any doubts, let's go after them first. So those who have any question, any query, please. So let's sort that first. Okay, very fine. That's for one. There is a question. Others, please drop a question. I'm waiting for a few seconds. If there is any question so far, please drop that. अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब किया नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस हुआ नहीं है, बिना उसके चलेगा नहीं. तो प्लीज ड्रॉप क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी. Okay, so here we begin. I don't see many questions coming in. Question number one. In fair column, there are zero values. How to deal with them? Fair enough. देखते हैं. Amit, rather than asking me, could have you could have gone to Kaggle and data description. Maybe it would have given you a fair idea. हाँ जी, और किसी ने देखा नहीं है? बाकी सब क्लीनिंग you have learned how to do that. तो ये सब पिछली बार लास्ट कर चुके हैं. So I am not repeating those things. I have just run that entire code. If anybody paid attention to, there are zero value in fair. Now can there be zero value in fair? अरे ये कौन है जो फ्री में जा रहा है टाइटेनिक पे?
Now there can be guesswork. Let's see a few suggestions. One, okay, one is here. It could be the crew of the ship. What else? It can be it can be very young babies, infants, maybe. Maybe they are the VIPs. पता नहीं हमें. हाँ तो देख लो ना. देख लो. If I am to see this, let's not only filter, let's view this filter. They are the people whose fare is 0. Is there something which you can locate? हमने कुछ सोचा था, कुछ आइडिया लगाया था कि ये कौन कौन लोग हो सकते हैं. देखें देखें देखें, ये यंग बेबीज तो नहीं है. That's for sure. Okay, they don't seem to be the VIPs also. VIP होते तो पैसेंजर क्लास 1, 2, 3 सब में नहीं जा रहे होते. शायद 1 में ही होते. फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे होते ये लोग मोस्ट प्रोबेबली. हाँ जी, और कोई बात हो सकती है. अगर ये हाँ शुरू में देखते ना तो शायद कुछ समझ आता. स्टार्टिंग में देखते, रीड करते ये डेटा. दिखाता हूँ. बिकॉज अब तो हम बहुत सारी चीजें, कई फालतू वेरिएबल्स हम उड़ा भी चुके हैं. Maybe now you can locate. All are male. All embarked from Escort, Southampton, from where the ship started. All have fare 0. Okay, that's obvious. They don't have any family with them. Sibling spouse 0, parent children 0. And their survival rate is very poor. हाँ जी. अब समझ आ रहा है कुछ? अब तो समझ गए कौन है ये लोग. तो फेयर 0 वैसे ही नहीं आ रहा है. Most probably they are crew of the ship. So obviously they will start from where the ship started. They don't have any family with them. Of course, because they are doing their job. They are not on a picnic. They are not going for a trip. And all are male. Yes, it was something 1910 or 1912. I am not very sure. It is more than 100 years ago. So we don't expect women to be working as naval crew. Yes or no? Those were times when, field duties were mostly taken by males. And then their survival rate is poor because, as it happened in that disaster, yes, it was. It is also demonstrated in the movie
The crew was doing everything possible to save the people on board first. तो उस in endeavor to save others, वो खुद नहीं बच पाया. Might be they were two gentlemen. है ना, हमारी तरह नहीं. सड़क भी पार करनी होगी ना तो घूसा घूसा मार के मैं जाऊंगा पहले. ठीक है जी. तो दिस इज नॉट फॉर नॉनसेंस, दिस इज फॉर अ रीजन. तो अब क्या करना है इनका? कुछ नहीं करना है. दे आर जेन्युइन वैल्यूज, राइट? Another question. Ronak brought this up. Okay, Ronak, you brought this up last week also. Stay with me. By today end of session, I will be able to answer that. Why can we use mice to predict the target directly, or should we not? तो अभी देखते हैं. भावेश, you are facing clearing that. Of course you should face issue. ये तो अब तक तुम लोग देख चुके हो. मॉडल बनाने में थोड़ी दिमाग लगता है. Yes or no? I think everybody realizes that. मॉडल तो 4 लाइन में बन जाता है. मॉडल बनाया, एक फंक्शन रन कर दिया, खत्म हो गया बात. पहला मॉडल डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स, दूसरा मॉडल स्टेप रिडक्शन, खत्म हो गया. फंक्शन लगाने हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए. वीआईएफ देखनी है कि पी वैल्यू देखनी है, काम होता जाएगा. दिमाग कहाँ लगाना है? डेटा क्लीनिंग. Perhaps I mentioned that in the very starting, that EDA is the longest and toughest part. That's where the blood and sweat lies. तो वो तो लगेगा भावेश. And there is no other way other than except practice. Practice on many data sets, different problems. As soon as you come across as many problems as possible, the better. I have tried to keep you people as hands-on as possible so far, and I have kept introducing diverse data sets as an independent. और आज भी एक नया डेटा सेट इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोगों को. ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग आपको करना क्या होता है वही बता रहा था अभी. मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं. See, missing value is the most notorious one. है ना, जो डेटा अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से वो है ये एनोमली कि डेटा अवेलेबल नहीं है. अब अवेलेबल नहीं है तो क्या करना. नाउ दैट इज वेरी ट्रिकी. बाकी सब आसान हो जाता है. केस मिसमैच का एनोमली है तो दिख जाएगा ना. होगा तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखता. आउटलायर होगा तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखता. ये ऐसा प्रॉब्लम है कि अवेलेबल ही नहीं है. तुम्हें ही सोचना पड़ेगा. अब उसमें सोच क्या कह सकते हो. बहुत सारे लोग ठक से बोल देते हैं, मेन मीडियम मोड कर देते हैं. मत करो, दिमाग लगाओ जैसे यहाँ लगा रहे हैं. जहां भी तुम्हें डाउट आया कि मिसिंग वैल्यू है, अच्छा देखिए कौन है मिसिंग वैल्यू, बताता क्यों नहीं है. क्या कुछ पैटर्न मिल सकता है. जैसे अमित को डाउट आया कि फेयर 0 है. 0 कैसे हो सकता है. हाँ तो देख लेते हैं ना क्यों हो सकता है. क्या पता कुछ दिख जाए. ओके, आई होप दैट्स इट. Yogiraj, the range of AIC which suggests fit is good. Okay, Yogiraj, mm, by the way, that's a rich name. You know who is Yogiraj? After whom you are named? AIC का कोई सेट रेंज नहीं होता है. रीजन बीइंग AIC इज नॉट स्टैंडर्ड लाइक आर स्क्वायर. तो अभी जैसे इस केस में आप लोगों ने मॉडल रन किया था तो क्या देखा था. AIC शायद कुछ कितनी आई थी. इट वाज अ फ्यू हंड्रेड्स. यस और नो. इट कैन गो अप टू अ फ्यू थाउजेंड्स. अगर डेटा बड़ा होगा आप लोगों का तो वो भी आप देखोगे. अब प्रॉब्लम उससे दूसरा आता है. क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कितनी ठीक है कितनी नहीं. तो आई थिंक ये शायद मैंने बात किया था लास्ट यहाँ तक तो हम रन कर चुके थे. पहला मॉडल तो बना चुके थे.
तो सिंस इट इज नॉट स्टैंडर्ड इट विल वेरी फ्रॉम डेटा टू डेटा। तो यहाँ तक जब हम मॉडल बनाने पहले पहुंच गए हैं, तो नाउ द डेटा इज कॉमन फॉर ऑल द मॉडल्स, जितने भी मॉडल हम बनाने वाले हैं। सो द फर्स्ट मॉडल, द डिफॉल्ट मॉडल विद ऑल द वेरिएबल्स, दैट बिकम्स द बेंचमार्क। उसका एआई से ही मैं बेंचमार्क मान लेता हूँ, क्योंकि अब डेटा चेंज नहीं हो रहा है, अब तो सिर्फ मॉडल चेंज हुआ है। ठीक है। तो हाँ, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं यार। कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल से तुम कैटेगोरिकल टारगेट प्रिडिक्ट करने लग गए हो। आई थिंक इट इज गुड। तो इट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है। तो द फर्स्ट मॉडल जो मैंने बाकी सारे प्रिडिक्टर लेकर के मॉडल बनाया है, इट इज शोइंग मी दैट AIC is in the starting AIC is 623। तो नाउ माय एंडिवर वुड बी कि ये इससे कम होती चली जाए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक भी ठीक है, आगे चलें जी। करूँ बात आगे थोड़ी सी। ओके, तो नेक्स्ट टर्म्स इज, हाँ जी, इसके बाद क्या करना था आप लोगों ने किया होगा तो, अगर किया है तो, पहला मॉडल सारे प्रेडिक्टर्स, कोई दिमाग नहीं लगाना। दूसरे मॉडल पे क्या होता है, स्टेप रिडक्शन, उसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना। स्टेप रिडक्शन किया तो था, लीनियर रिग्रेशन में भी किया था ये तो वही कर रहे हैं। तो log 2 is just step reduction from logistic 1। I run this quickly. There are a few iterations run, and let's check summary. And this time we see that AIC पहले से थोड़ा सा drop हुआ है, तो which is good news. If you are able to code, if you want to code along, keep coding. अगर पीछे रह जाओ तो मेरे को बता देना, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर बिल्कुल कोड नहीं करना है, स्टे विद मी, लास्ट में सारा कोड एक साथ लिस्ट दूंगा। तो पहले समझ लो, बाद में कोड रन कर लेना along with the recording। लॉजिस्टिक 2 हमने जब दूसरा मॉडल बनाया है, एंड वी सी दैट ओके, इट इज शोइंग ऑल द वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात है, सारे अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स चले गए, निकाल दिया स्टेप रिडक्शन। एआईसी थोड़ी सी कम हो गई, हाँ कम ही होनी चाहिए। एआईसी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस, आर स्क्वायर्ड इज मेजर ऑफ गुड फिट। तो आर स्क्वायर्ड बढ़ानी ही होती है हमें, एआईसी कम करनी होती है। हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट टू डू, नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट क्या करते थे। somebody, maybe somebody from woman power। नहीं, हमें कैगल पे जो कर रहे हैं, अच्छा वो भी दिखाता हूँ चलो आज। इट इज नॉट बिकॉज कि वो लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं इसलिए स्कोर 1 नहीं आया है, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसलिए 1 आया है। अभी देख रहे हैं, अभी तुमने प्रेडिक्शन नहीं देखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, अभी तक सिर्फ यही देखा था कि मॉडल कैसे बना। लेकिन मॉडल बनाने का काम कम से कम पूरा होना चाहिए था। आई डोंट सी दैट हैपन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन लाइन, somebody, Sayali, Richa, Shweta। ओके, फाइनली अजिंक्य, थैंक्स।
हाँ श्वेता, आउटलायर तो ट्रीट कर चुके हैं, वो तो डेटा क्लीनिंग में कर चुके हैं, अब तो मॉडल बना रहे हैं। अरे है कि नहीं, मिसिंग वैल्यूज और ये सब तो हम पहले देख चुके हैं। तो आउटलायर भी उसी सीक्वेंस में यूनिवेरिएट एनालिसिस किया था ना हमने, वन वेरिएबल एट अ टाइम देखते हुए जा रहे थे। तो आउटलायर तो एज एंड व्हेन आउटलायर अकर्ड वी क्लीन्ड इट। नाउ इन मॉडल नेक्स्ट कम्स इज लेट्स चेक, हाँ, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड वीआईएफ, क्योंकि ये देखने में सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। माय कंसर्न इज आर दे रियली इंपॉर्टेंट, or there is some variable which is just important because it is related with some other important variable, right? कोरिलेशन तो नहीं है, मल्टीकोलिनियरिटी तो नहीं है, तो इशू वो है। तो ओके, लेट्स गो अहेड। तो रिक्वायर कहा एंड सॉर्ट द वीआईएफ। हाँ जी, वीआईएफ चेक में हमने देखा कि जितने भी वेरिएबल इस मॉडल में हैं, सबका वीआईएफ कितना है? इट इज वेल बिलो 5, in fact below 2. So the best case scenario, it means each variable has VIF of order 1. Yani, I can very safely assume that they are very independent. कोई correlation नहीं हो रहा। तो आई थिंक और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पर, सिंपली हो गया। बिकॉज VIF होता तो एक एक करके वो हटाते, पी वैल्यूज का प्रॉब्लम होता तो उन्हें एक एक करके हटाते। फिलहाल हमें कुछ भी हटाना नहीं पड़ा है, तो ऑल सेट। लेट्स गो अलॉन्ग। व्हाट कम्स नेक्स्ट इज, आई थिंक दिस इज आवर मॉडल, फाइनल मॉडल। तो प्रेडिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? प्रेडिक्ट फंक्शन मालूम है ये तो, लीनियर इक्वेशन तो मिल गई, कोएफिशिएंट्स मिल गए, वेरिएबल्स पता चल गए कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन करते हैं तो मैनुअली इक्वेशन रखने की जरूरत नहीं होती हमें, ये भी मालूम है आप लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैलिडेशन कॉलम में, वैलिडेशन डेटा सेट में क्रिएट अ कॉलम प्रॉप सर्वाइव, और वहां पर क्या आएगा? प्रेडिक्ट लॉजिस्टिक टू न्यू डेटा इज वैलिडेशन। जब हमने ये कर लिया, वैलिडेशन देखते हैं डेटा सेट कौन सा कॉलम आया। मैंने बोला है प्रॉप सर्वाइव, आ गया ये कॉलम। क्या आ गया ये? 2.05 माइनस 2.9, 0.94, 0.50, क्या है, कौन आ गया? बता सकता है कोई? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी होती है तो बताओ ना, 2 पॉइंट समथिंग कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी शुड हैव बीन बिटवीन 0 एंड 1।
हाँ इट इज प्रिडिक्शन, ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन, लेकिन क्या समझूं इससे? मेरा मॉडल किसी को कह रहा है 2, किसी को कह रहा है -2, किसी को कह रहा है 0.5। ये क्या आ गया? अरे ये वही आ गया जहां से कहानी शुरू की थी आपने। GLM मीन्स, GLM मीन्स, GLM लिख के बनाया ना ये मॉडल। GLM इज जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। LM फंक्शन क्या था? लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे। GLM स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड लीनियर रिग्रेशन इन द सेंस, ये देखो, याद है ये? हमने शुरू किया था कि सिग्मॉइड फंक्शन मेरे को प्रोबेबिलिटी बताएगा, लेकिन सिग्मॉइड फंक्शन का इक्वेशन तो बहुत ही टेढ़ा था, तो हमने उसके हाथ पैर मोड़ के क्या बनाया था उसको? लीनियर इक्वेशन में लेकर के आए थे इसको। प्रोबेबिलिटी से ऑड्स, ऑड्स से लॉग ऑड्स, यही गए थे, रिमेंबर? हाँ तो तुमने बोला था लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ ऑड्स, ये कैलकुलेट करके दे दो। हाँ तो दे दिए उसने, ये वही दिए। उसने क्या बताया आपको? लॉग ऑफ ऑड्स बता रहा है वो आपके प्रेडिक्शन में भी। पर अब काम आसान हो गया है। कैसे? लॉग ऑफ ऑड्स है तो एंटी लॉग ले लेंगे। अगर मेरे को लॉग ऑफ ऑड्स मिल गया है तो एंटी लॉग लेके ऑड्स मिल जाएगा। सही बात है। और जब ऑड्स मिल जाएगा तो बैक कैलकुलेशन करनी वो तो मुझे आती है, प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा। अच्छी बात है। कैसा मिल जाएगा? मैनुअली कर सकते हो, लेकिन क्या मैनुअली करना जरूरी है? मैनुअली करना जरूरी नहीं है। देयर इज फैसिलिटी इन प्रेडिक्ट फंक्शन टाइप, कि आपको प्रेडिक्शन टाइप कैसा चाहिए। Okay, it is showing me the auto suggestion. What is the type of prediction you want? So it can be, there can be several options here. So if I give the keyword response, ये हेल्प फंक्शन में मिल जाएगा, सब पता चल जाएगा आपको अगर पढ़ना है इसके बारे में। टाइप इज इक्वल टू रेस्पॉन्स, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे को सीधे सीधे मेरी प्रोबेबिलिटी बताओ। When I run this, let's see वैलिडेशन में डेटा कैसा आ गया है। अब वो प्रॉपर्ली मेरे को प्रोबेबिलिटीज पता है। Where now it is giving me directly probability of survived, कि कौन सर्वाइव किया कौन नहीं किया। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी दिखाई है, देखो कैसे दिखाई है। मेरा मॉडल का कहना है दैट देयर आर 88% चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस पर्सन। तो मैनुअली क्या समझ सकता हूँ इसको? क्या समझू इसको? तो सर्वाइव कर ही जाएगा। मैं मैनुअली कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको वन में। यही सोचा था ना हमने स्टार्टिंग में, कि मेरा मॉडल किसी तरह प्रोबेबिलिटीज बता दे। तो ये गलती करते हो आप लोग इंटरव्यूज में, वहां पर सिग्मॉइड फंक्शन विल नॉट रिटर्न 0 and 1, it will always return probability between 0 and 1। अगर 1 की पता है तो 0 की अपने आप पता है, राइट?
ये कन्वर्जन हम मैनुअली करते हैं, मॉडल नहीं बताता, मॉडल सिर्फ प्रोबेबिलिटी कहता है हमारा। ठीक है जी, याद रहेगा। तो देखो हमारा मॉडल बता रहा है 86% चांस है इसके सर्वाइवल का, मैं मैनुअली देख के बोल सकता हूँ कि हाँ यार बच ही जाएगा। माई मॉडल इज सेइंग दैट देयर आर 4% चांसेस, 0.04 कह रहा है, देयर इज 4% चांस ऑफ सर्वाइवल के, 4% चांस है इसके बचना। क्या समझू इसे मैनुअली? सही बात है, श्वेता कह रही है 0 समझ लेते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है यार। 4% कह रहा है मॉडल तुम्हारा, इसका मतलब शायद नहीं करेगा सर्वाइव। तो वही कर रहे हैं, हाँ जय वही कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल प्रेड सर, प्रेडिक्शन ऑफ सर्वाइव। और क्या है यहाँ पर वैल्यूज, आई एम यूजिंग इफ एल्स, कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो। इफ एल्स कर लो, राउंडिंग ऑफ कर लो, राउंडिंग ऑफ से बेटर इफ एल्स है, देखेंगे अभी थोड़ी सी देर। मैं इफ एल्स यूज कर रहा हूँ फिलहाल। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव अगर 50% से ज्यादा है तो 1 बोल दो उसको। अरे सही बात है, और क्या करोगे। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, जो प्रोबेबिलिटी अभी कैलकुलेट की है, अगर 50% से ज्यादा कह रहा है मॉडल तो 1, 50% से नीचे नीचे है तो 0। यही तो कर सकते हो एट द बेस्ट। तो लोग कर दिया हमने। हाँ अभी देखेंगे, वो राउंड करना दुख देगा अजय के, कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, बताता हूँ क्यों। फिलहाल यहाँ तक हो गया। देखें क्या बना हमारा वैलिडेशन डेटा सेट। हमारे वैलिडेशन डेटा सेट में अब 2 कॉलम्स आ चुके हैं। वन इज सर्वाइव, एक्चुअल कौन सर्वाइव किया कौन नहीं। एक्चुअल सर्वाइवल इन लोगों का क्या क्या हुआ था, एंड दिस इज योर प्रेडिक्शन। ये तुम्हारे मॉडल ने बताया कि इन लोगों का क्या क्या होगा। हाँ जी, कैसे कंपेयर करोगे अब? कैसे पता चलेगा हमारा प्रेडिक्शन कैसा है? सो इंस्टॉल 2 पैकेजेस here in the chat box. भावेश, कोरिलेशन इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं तो प्रेडिक्शन होता है, यहाँ तो 0 1 है ना। these are not actually 0 and 1, they mean survived and deceased, तो यहाँ तो कैटेगरीज होगी। so you will need to install E1071 because it will help you install Caret, and in Caret there is a function, we call it confusion matrix। कैसे आता है कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स? नाउ कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स का सिंटैक्स है थोड़ा सा। द फंक्शन इज कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स
we mention it like my prediction, comma, against actual. Since they are categories, so confusion matrix will only work if you have converted them into factor. तो एस फैक्टर होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं चलता. देन देयर इज पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 हियर. इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ी देर में देखें. ठीक है, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या क्या बताया मैंने. मेरा प्रेडिक्शन क्या आया है, कॉमा, एक्चुअल वैल्यूज क्या थी, एंड पॉजिटिव इज 1. फॉर नाउ पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 मैंने बोला है बिकॉज सी दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. टाइटेनिक, हाँ टाइटेनिक में प्रेडिक्शन करके क्या देख रहे हो, वो तो हो चुका ना जो होना था. लेकिन प्रैक्टिकली जब देखोगे, प्रैक्टिकली सिनेरियोज में देयर इज वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमने बोला टारगेट वेरिएबल. विद इन टारगेट वेरिएबल देयर इज अ क्लास ऑफ इंटरेस्ट. थिंक अबाउट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, से बैंक्स. सपोज बैंक मेरे को लॉजिस्टिक रिग्रेशन करने के लिए बोले कि हमने क्रेडिट कार्ड दिया है, कौन डिफॉल्ट करेगा कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा, प्रेडिक्शन भेजो, बताओ. थिंक अबाउट इट, टारगेट वेरिएबल तो हो गया कि डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा. नाउ there is a default category and then there is a non-default category. Which category is where which would interest bank most? There would be a class of interest. There are two classes, defaulters and non-defaulters. Yes or no? क्या जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है बैंक को, किस क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट है बैंक का. आई थिंक बैंक ये पता करना चाहेगा कि डिफॉल्टर्स कौन है. जो डिफॉल्ट नहीं कर रहे वो तो नहीं कर रहे. अरे यस और नो. जो अच्छे लोग हैं डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लोन लेंगे चुपचाप वापस भी कर देंगे, वो तो ठीक है, उनके साथ तो ठीक ठाक चल ही रहा है. ये बताओ डिफॉल्ट कौन करेगा. उन पर नजर टेढ़ी है बैंक की, उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है. या तो लोन नहीं देंगे, देंगे तो कम देंगे, कुछ कोलेटरल लगवा लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ समथिंग दे कैन डू अबाउट इट. इफ आई टेल यू अनदर प्रैक्टिकल सिनेरियो, से एम्प्लॉय चर्न, जो एचआर का प्रॉब्लम होता है, क्या एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है कंपनी. तो टारगेट वेरिएबल बिकम्स कि एट्रिशन होगा या नहीं होगा, whether this employee will attract or not. Now within these classes, which one is the more concerning? कहाँ इंटरेस्ट है एचआर में. आई थिंक who are prone to attract. Yes or no? यार जो नहीं छोड़ के जा रहे वो तो नहीं जा रहे, दे आर रिटेन. हाँ, कौन दुख देने वाला है, जो छोड़ के जाने वाले हैं उनका ध्यान करा जाए, उनका कुछ इंतजाम सोचा जाए. अगर वो छोड़ गए तो ठीक है, वैसे तो जाए, हमारे एचआर तो ऐसे रहते हैं, कल का जाता आज चला जाए छोड़. हाँ फिर मौका मिलेगा किसी कंसल्टेंसी वाले को बुलाने का, फिर कमीशन आएगा, मजा आगे छे. नहीं बट हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है. सो वही बता रहे हैं, व्हाट इज द पॉजिटिव क्लास आउट ऑफ दीज टू, विच वन इज माय क्लास ऑफ इंटरेस्ट. सो इन दिस केस आई थिंक आई वुड लाइक टू नो हु सर्वाइव्ड. यही सोच रहे थे हम, शुरू से यही बात कर रहे हैं. सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी, सर्वाइव करेंगे तो कौन से फैक्टर की वजह से करेंगे, किस वजह से कर गए थे उस समय पे, यही सारी बात कर रहे हैं कई दिन से.
तो वही बता रहा हूँ, पॉजिटिव क्लास इज 0, व्हेन पॉजिटिव इज 1, तो नेगेटिव क्लास इज 0, दैट बिकम्स नेगेटिव. लेट्स रन दिस कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड लेट्स सी कि हम क्या देखने की बात कर रहे हैं और क्या देखने के लिए मिलता है. So this is the kind of confusion matrix which appears. और ये हमें क्या क्या बता रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहा है, देखते हैं हम. Actually confusion matrix is this, others are just calculation. Confusion matrix असल में ये होता है, ये क्या बता रहा है आप लोगों को, if I move this to Excel, just Excel पे लेकर आ रहा हूँ, this reference means actuals, कि actually क्या हुआ. Prediction means तुम्हारा prediction क्या कहता है. एक्सेल शीट पे ये कुछ ऐसा दिखेगा. जीरो और वन, कौन से जीरो और वन, एक्चुअल के. एक्चुअली इन लोगों का क्या हुआ था, हेयर कम जीरो एंड वन, किन लोगों का, जिनका आप प्रिडिक्शन बता रहे हो. देखो हुआ क्या क्या है, इधर जीरो वो वाले हैं जो एक्चुअली सरवाइव नहीं किए, यहां पर वो वन लिखूंगा जो एक्चुअली सरवाइव किए. सेम गोज फॉर प्रेडिक्टर्स. दिस वुड बी रिटन कि ये जीरो यानी डिसीज हो गए हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से, दिस इज वन यानी सरवाइव कर गए हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से. लेट्स राइट दिस. क्या क्या नंबर थे, 120, 27, 17, 59. 120, 27, 17 एंड 59, ऐसा ही है ना, यही तो आया है. हाँ यही आया है. ठीक है जी, ये बना है तुम्हारा कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स. तो इसकी मॉडल की एक्यूरेसी हम कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से चेक करते हैं. कोरिलेशन नहीं आ सकता बिकॉज कैटेगरीज हैं. कैटेगरीज क्या हैं, 0 1 1 0, ऐसे ही आ रहा है प्रिडिक्शन. हमने बोला था मेरा इंटरेस्ट
1 क्लास में ज़्यादा है तो इन दिस वे दिस इज पॉजिटिव क्लास एंड 0 बिकम्स नेगेटिव क्लास। ऐसा भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, फॉर नाउ कीपिंग इट, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, कहीं देखने को मिल जाए ऐसा तो ऐसे भी लिख देते हैं लोग। अब देखते हैं हमारा प्रेडिक्शन क्या है। देखो, ये वो लोग थे जो मैंने बोला, मेरे प्रेडिक्शन ने बोला कि सरवाइव नहीं करेंगे। कितने लोग? 120 प्लस 27, इतने लोग, ये मेरे मॉडल ने बोला था सरवाइव नहीं करेंगे, 0 बोल दिया था। सही बात है। अब मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली उन लोगों का क्या हुआ था। एक्चुअली देखा तो पता चला कि 147 में से 120 तो वही थे जो हमारे मॉडल ने बोला था सरवाइव नहीं करेगा। करेक्ट डिसीजंस। 27 ऐसे थे जो एक्चुअली सरवाइव कर रहे थे, लेकिन मेरे मॉडल ने बोल दिया गलती से 0। ठीक है, समझा यहां तक? सेम गोज डाउन बिलो। ये वो लोग थे जो मेरे मॉडल ने बोला कि सरवाइव करेंगे। 17 प्लस 59, इतने लोगों को मेरे मॉडल ने बोला था कि ये लोग सरवाइव कर जाएंगे। हम देखने पहुंच गए तो क्या देखते हैं, 59 लोग हैं तो वाकई ऐसे थे जो एक्चुअली भी सरवाइव किए। सेवनटीन लोग ऐसे थे जो गलती से मेरे मॉडल ने बोल दिया सरवाइव करेंगे, लेकिन एक्चुअली सरवाइव नहीं किए, देवर ऑफ 0 क्लास। तो ऐसा बना तुम्हारा कॉन्फिगर मैट्रिक्स। समझ आता है ये? यार मैंने प्रेडिक्शन किया कितने लोगों पे, कितने लोगों पे करके देखा वैलिडेशन डेटा में, इट इज 223। यही तो था वैलिडेशन डेटा में। मैं जब वैलिडेट कर रहा हूँ अपना मॉडल, सो देर आर 223 पीपल जिनके बारे में मेरे को प्रेडिक्शन देना है। मैंने दे दिया। क्या प्रेडिक्शन दिया कि ये 147 तो सरवाइव नहीं करेंगे। हाँ, 120 प्लस 27 प्रेडिक्शन का अगर मैं अपने टेबल देखूं, अगर मैं टेबल देखूं अपने प्रेडिक्शन का, वैलिडेशन डॉलर प्रेडिक्शन ऑफ सर्वाइवल, हाँ तो ये बता रहा है कि 147 लोग सरवाइव नहीं करेंगे, 76 लोग सरवाइव करेंगे। यही बात हुई। एक्चुअली देखने लगूं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था इन लोगों का, तो सर्वाइव का टेबल देखा। सर्वाइव में मैंने देखा 137 सर्वाइव नहीं करेंगे, 86 लोग सर्वाइव करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता ना कौन से को मैंने बोला है 0 और कौन से को इसने बोला है 0, कौन सा एक्चुअली 0 है, कौन सा प्रेडिक्शन 0 है। तो इसलिए हमने सोचा कॉन्फिगर मैट्रिक्स बनाते हैं। जब कॉन्फिगर मैट्रिक्स बनाई तो हमें देख के पता चला कि हमने जो प्रेडिक्शन दिया था 147 लोगों का 0 आने का, उनमें से 120 तो एक्चुअली ऐसे थे जो वाकई सर्वाइव नहीं किए। तो प्रेडिक्शन ठीक है हमारा, लेकिन 27 हमने मिस्टेक से डिसीज बोला है, एक्चुअली वो लोग सर्वाइव किए। ठीक बात हुई। सेम गोज फॉर क्लास 1। क्लास 1 में हमने क्या देखा, 76 हमने बोला सर्वाइव करेंगे, एक्चुअली 86 सर्वाइव हुए थे। लेकिन कौन कौन से थे, तो वही देख रहे हैं कि 76 लोग हमने जो बोले हैं सर्वाइव करेंगे, कहाँ कहाँ गिरा है वो। उनमें से 59 तो ठीक है सर्वाइव करेंगे, देख लिया। 17 लोग ऐसे हैं जिन्हें हमने गलती से बोल दिया था सर्वाइव करेंगे, एक्चुअली वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, दे वर फ्रॉम 0 क्लास एक्चुअली।
इन्हीं बातों को हमने एक टेबल में रख लिया है, टेबुलेट कर लिया है, तो वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन गया। उसी को कॉन्फिगरेशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब समझा? ठीक ठाक। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन अभी बोलोगे? ओके, okay, let's do one thing. Let's break for a while, and meanwhile, something on your WhatsApp group. Maybe it will help you understand. Just, uh, just a funny example. Maybe everybody will relate to it. ठीक है जी, देखिए एक बारी. So let's break for a while, and then we will continue. Meanwhile, try to make sense of what I have left on your WhatsApp group. It's almost 9:40, so we resume at 9:50. Okay, and then we'll continue. Even if then question exists, do tell me. I'll explain it once again. Okay, guys. So just please be back in time. I'll see you there. Hey again. Hope everybody is back. Okay, I see many people are back. Right in time. Very fine. In fact, oh, maybe I am late by 2 minutes. Okay, very nice. हाँ जी, अब समझ आया कुछ कॉन्फिगर मैट्रिक्स की कहानी? अब हो जाएगा कॉन्फिगर मैट्रिक्स. अरे वो तो फंक्शन करके देता है अमित. अरे तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता है ना, हमारे डेटा में है ना एक्चुअल सर्वाइव. इसीलिए तो अवेलेबल डेटा से निकाला था ये वैलिडेशन डेटा. अवेलेबल डेटा से वैलिडेशन डेटा निकाला ताकि टारगेट वेरिएबल मुझे एक्चुअली क्या हुआ था इन लोगों का ये तो पता ही है. मेरा प्रेडिक्शन कैसा है वो भी देख लिया. तो हमारा मॉडल कुछ सही बता रहा है, कुछ गलत बता रहा है, पता चल गया ना. नाउ क्वेश्चन कम्स इज कितना सही गलत बता रहा है. So there are three things which we should keep an eye on. What are they? They are accuracy, sensitivity, and specificity.
कैसा, देखते हैं क्या क्या होता है। देख लो आराम से। डेटा तो ये रहा, यही है, ये तो मालूम है। ठीक बात है। व्हाट इज एक्यूरेसी इन दिस केस? Accuracy is as simple as that. Number of correct predictions divided by number of total decisions. सिंपल। तो बता सकते हो हमारे करेक्ट डिसीजंस कितने हुए हैं? देखो हमने बोला 0, एक्चुअली भी 0, ये करेक्ट डिसीजन हो गए। हमने बोला 1, एक्चुअली भी 1, तो ये करेक्ट डिसीजन हो गए। बाकी हमारे गलत हो गए। या तो हमने 0 बोला था, एक्चुअली 1 थे, या हमने 1 बोला था और एक्चुअली 0 थे, तो वो सारे गलत हो गए। तो करेक्ट डिसीजंस आई हैव हाइलाइटेड इन ग्रीन, wrong decisions we have highlighted in orange here. So this diagonal, the diagonal is correct decisions, the anti-diagonal is wrong decisions. ठीक है, क्या क्या हुए, ये कितने हो गए जी बताओ? आओ कैलकुलेट करके देखते हैं। करेक्ट डिसीजन 120 प्लस 159। करेक्ट डिसीजन कौन कौन से हुए? 120 प्लस 59, जितने भी हुए, डिवाइडेड बाय टोटल डिसीजंस। टोटल डिसीजन कितने हुए? ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सारे ले लो। कितने हुए हैं टोटल डिसीजंस? And if I convert that into percentage, so my model is 80% accurate. बढ़िया। मैनुअली करके देखा आपने, करने की जरूरत नहीं थी, दिखा रहा है कैलकुलेशन। दूसरी चीज मैंने बोला हम देखना चाहिए, हम वी शुड नॉट रिलाई ऑन एक्यूरेसी ओनली, वी शुड सी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आल्सो। देयर आर अदर टर्म्स आल्सो, प्रिसिजन, रिकॉल, वो इन्हीं को बोलते हैं। तो प्रिसिजन और रिकॉल भी इन अ वे यही होते हैं, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, वो देखेंगे आप आगे, दे आर जस्ट वेरिएशन ऑफ दिस। पाइथन में आएगा वो आप लोगों का। तो फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू दिस। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, अब ये क्या होते हैं? पहले तो ये बताओ जरूरत ही क्या है? एक्यूरेसी पता चल तो रही है, बट आई एम सेइंग दैट एक्यूरेसी कैन बी डिसीविंग, वी शुड सी समथिंग एल्स ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक कैन गो रॉन्ग विद एक्यूरेसी? एनीबॉडी? नो आइडिया? नन? अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज एवरीबॉडी मार्क प्रेजेंट, mark yourself present, one at a time, not more, not less. Please leave everything else and mark yourself present here. Nobody should miss that. Okay. See, I am saying accuracy alone can be deceiving because when you will be doing something practical data set, this is not a practical data set। हाँ, यहाँ पर कैसा रेशो था, बहुत सारे लोग सर्वाइव कर गए, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाए।
लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है जैसा भी दिखाऊंगा। एंड एक्यूरेसी विल ग्लिच इन दिस सिनेरियोज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सपोज एन एग्जाम्पल ऑफ लोन डिफॉल्ट। कुछ लोग डिफॉल्ट कर देंगे। तो कितने लोग डिफॉल्ट करते हैं? बैंक के पास कुछ एग्जिस्टेंट डेटा है, मे बी अ फ्यू थाउजेंड कस्टमर्स। वो लोग लोन लेने आए थे, उनमें से कुछ लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन कितनों ने किया होगा? थिंक अबाउट इट। इन अ प्रैक्टिकल केस सिनेरियो कितने लोग डिफॉल्ट करते होंगे कि लोन लिया और पैसा वापस नहीं दिया टाइम से, या दिया ही नहीं? गेटिंग द आइडिया? रेयरली, वेरी लेस पीपल। सी, यूजुअली पीपल आर गुड। लोग अच्छे होते हैं। डिफॉल्ट करने का इंटेंशन, इसी ऐसा तो कौन होगा जो बैंक जाते समय मतलब दिमाग में बना के जा रहा है कि डिफॉल्ट करूंगा, आज क्रेडिट कार्ड लेके आना है और पैसे नहीं देने हैं। है ना? लोग यूजुअली अच्छे होते हैं, ऐसी इंटेंशन नहीं होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, देर, हाँ, अमित, दैट इज अनदर थिंग। दैट दैट इज अनदर थिंग कि वो अमाउंट कितना था, वो अलग बात है। लेकिन डिफॉल्टर तो एक ही था ना। मुझे पता है किसकी बात कर रहे हो तुम, किंगफिशर। हाँ, फ्लाइट बंद हो गई उसकी, बियर अब भी आ रही है। सी, भले ही हजारों करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया, लेकिन डिफॉल्टर तो एक ही था। आदमी तो एक ही था जो लोन लेने गया था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कितने डिफॉल्ट होते हैं ऐसे? मे बी 10 साल में एक बार सुना होगा तुमने ये घटना हुई है। यस और नो? ऐसा लोन डिफॉल्ट रेयरली हैपेंस। एंड दिस इज ओके, दिस वाज अ बिजनेस लोन। मैं अगर डे टू डे बात करूं, हम लोग लोन लेने किस लिए जाते हैं बैंक से? मैं शायद फ्लैट खरीद रहा हूँ, कोई कार खरीद रहा हो सकता है। मे बी सम ऑफ यू, इफ यू विल आस्क योर पेरेंट्स, मे बी उन्होंने कोई हो सकता है एजुकेशन लोन लिया हो आप लोगों के लिए। तो जनरली लोग, सी, आई विल नॉट वांट दैट इफ आई हैव टेकन अ होम लोन तो मेरा घर पजेस हो जाए, बैंक घर पे चक्कर लगाने लगे। आई विल नॉट लाइक इट, आई विल नॉट वांट दिस। अगर पेरेंट्स ने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है, दे विल नॉट लाइक दैट बैंक विल स्टार्ट बॉदरिंग देयर किड कि लोन डिफॉल्ट कर दिया था तुम्हारे पेरेंट्स ने। तुम्हें माँ बाप ने नहीं, हमने पढ़ाया, हमें दो आधी सैलरी। हाँ, बैंक करते हैं ऐसे काम, मतलब अब नहीं करते, करते थे। देयर वर टाइम्स व्हेन बैंक्स वर प्रेटी इनह्यूमन। तो यूजुअली इंटेंशन नहीं होता। ऑन टॉप ऑफ दैट फियर रहता है कि डिफॉल्ट किया तो ये हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर चेक्स बाय बैंक, इवन इफ देयर इज इंटेंशन। अगर इंटेंशन नहीं भी है, हो सकता है तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है लोन रिपे करने की, तो बैंक इतनी जल्दी से लोन भी नहीं देता। यस और नो? जिसने लोन लिया होगा हिमाटिकस के लिए, वो तो क्रेडिट पार्टनर है यार, उन्होंने तो जल्दी से दे दिया होगा। मैं कह रहा हूँ एक्चुअल बैंक, जाके तो देखो। HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, चीख निकाल देते हैं। इतने पेपर मांगेंगे ना, एक बार को तुम ही सोचोगे कि रहने देते हैं, छोड़ो। देयर आर सेवरल चेक्स ऑफ बैंक। वो सिविल स्कोर देखेंगे, क्रिसिल रेटिंग देखेंगे आप लोगों की, क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे कि पहले लोन लिया था तो उसमें क्या किया था, सैलरी कितना है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, दिस एंड दैट। और उसके ऊपर लीगल एग्रीमेंट साइन करा लेंगे 50 पेज का तुमसे। जिन्होंने लिया होगा उन्हें पता होगा।
प्री अप्रूव्ड में नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो देख लिया ना उन्होंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट। तुम और क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे? सारे डॉक्यूमेंट लिए तो लिए उन्होंने तुमसे पहले। अरे जब अकाउंट खुला था तभी नहीं ले लिए थे सारे डॉक्यूमेंट? प्री अप्रूव उसके बाद कर रहे हैं, जब उन्होंने तुम्हारी ट्रांजेक्शन देख लिया, सैलरी देख लिया, सब कुछ देख चुके हैं। डेटा 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 डेटा। ठीक है। और प्री अप्रूव्ड कहने को प्री अप्रूव्ड है, वो होता कुछ नहीं है। जब लोगे पता चलेगा। चलो, मैं दिखाना क्या चाह रहा था, सपोज एक्चुअली बैंक के पास 100 कस्टमर आए, मान लेते हैं फिलहाल। मेरे पास 100 लोगों का डेटा है एंड 100 पीपल टुक लोन फ्रॉम बैंक, एंड एक्चुअली उनमें से 90 लोगों ने डिफॉल्ट नहीं भी किया, सिर्फ 10 लोगों ने डिफॉल्ट किया। सो आई एम सेइंग 10%। अगर मैं 10% भी कह रहा हूँ, आई एम बीइंग जनरस। हालांकि 10% भी होता नहीं है डिफॉल्ट। पर मैंने कहा कि चलो वर्स्ट केस सिनेरियो 10% लोग डिफॉल्ट फिर भी कर गए। सो दिस हैपेंड एक्चुअली, नॉट हियर इन फैक्ट, दिस हैपेंड एक्चुअली। तो एक्चुअली 90 वर जीरो, एक्चुअली 10 वर 1, 10 वर डिफॉल्ट या नॉन डिफॉल्ट, नॉन डिफॉल्ट लिखो इसको। अब मैंने बनाया एक मॉडल, ये एक्चुअली होने वाला था, लेकिन मेरा मॉडल का प्रिडिक्शन क्या कहता है? मेरा मॉडल है गधा मॉडल। वो क्या कहता है? सब जीरो क्लास में जाएंगे, ऑल आर नॉन डिफॉल्टर। एक्चुअली मॉडल ही नहीं है, इट इज जस्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड। क्या बोला उसने? कोई डिफॉल्ट नहीं करता, दे दो सबको लोन। तो डिफॉल्ट कौन करता है? जीरो जीरो। कोई डिफॉल्ट नहीं करता, सबको लोन दे दो। ऑल 100% आर नॉन डिफॉल्टर्स। इस गधे मॉडल की एक्यूरेसी देख रहे हो कितनी आ रही है? कारण, क्योंकि इसने 100 डिसीजंस लिए। इस मॉडल ने डिसीजन लिए 100, 100 में से 90 इसके फिर भी ठीक हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग डिफॉल्ट नहीं करते। हाँ जी। तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है मॉडल तुम्हारा, है ना? कतई छोटा भगवान। 90% एक्यूरेसी। ओ हो। डिफॉल्टर कितने पकड़े हैं इसने? बैंक को पकड़ने का डिफॉल्टर कितने पकड़े हैं? एक नहीं। थिंक अबाउट इट, इफ 10 आउट ऑफ एवरी 10 कस्टमर्स डिफॉल्ट करते जाएं और तुम्हारा मॉडल नहीं पकड़ पा रहा, अरे बैंक बंद करवा दोगे तुम? हाँ, जब बैंक पूछेगा किससे सिक्का है, और फिर मेरा नाम रोशन करोगे वहां। ठीक है। हाँ तो नहीं है, ऐसी कुछ मंशा है नहीं मेरी ऐसा नाम रोशन कराने की, इसीलिए तो मैं कुछ और सिखाता हूँ। तो इसलिए सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देखेंगे। तो लेट्स कम डाउन टू व्हाट इज सेंसिटिविटी। नाउ सेंसिटिविटी इज नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस। कौन से वाले? पॉजिटिव क्लास वाले। हमारा इंटरेस्ट यही था ना। अरे नॉन डिफॉल्टर से मुझे क्या मतलब? अरे सही बात है कि नहीं? मेरे को तो ये जानना है कि पॉजिटिव क्लास में क्या हुआ। आओ देखते हैं क्या हुआ। हाँ जी, पॉजिटिव क्लास। एक्चुअली कितने डिफॉल्टर्स थे? 10। तो नंबर ऑफ टोटल डिसीजन जो पॉजिटिव क्लास वालों के लिए लिए हैं इसने, वो कितने लिए हैं? 10। तो डिवाइडेड बाय 10। नॉट एक्चुअली, दूसरी लाइन में लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वैसे
ही छोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों चीजें दिखनी चाहिए आप लोगों को। एक्यूरेसी कैलकुलेट किया, सेंसिटिविटी नंबर ऑफ डिसीजंस इन करेक्ट डिसीजंस ऑफ पॉजिटिव क्लास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डिसीजंस ऑफ पॉजिटिव क्लास। हाँ जी, कितने लिए हैं पॉजिटिव क्लास में टोटल डिसीजन इसने? ये और ये, यार यही तो आ रहे थे डिफॉल्टर्स एक्चुअली। तो एक्चुअली डिफॉल्टर्स तो इतने थे, उनमें से पकड़े कितने? पकड़े कितने हैं? अरे देखो कितने बताया मैंने डिफॉल्टर। 0। तो इवेंचुअली क्या हुआ है, ये 0 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0। ये होती है सेंसिटिविटी। तो डिस्पाइट माई मॉडल इज, देखने में एक्यूरेसी 90% जा रही है, लेकिन सेंसिटिविटी कितनी है? सेंसिटिविटी देख के मुझे पता चल रहा है कि घटिया मॉडल है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है फिर? स्पेसिफिसिटी बोल के देखना जरा, बोल के दिखाओ पहले। स्पेसिफिसिटी बोला जा रहा टंग ट्विस्टर। Specificity is kind of inversely proportional to sensitivity because it is about negative class. Similar thing about negative class. इसी मॉडल की स्पेसिफिसिटी देखने लगो, यानी किन की बात कर रहा हूं मैं? एक्चुअली नेगेटिव क्लास कितने थे और उनमें से मैंने कितने पकड़ लिए, ये बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, तो एक्चुअली नेगेटिव क्लास कितने थे, एक्चुअल नॉन डिफॉल्टर्स कितने थे? एक्चुअल क्लास वाले दोनों चीजें ऐड कर लो ना, एक्चुअल क्लास वाली साइड की दोनों चीजें ऐड हो गई। एक्चुअल तो इतने थे, मैंने पकड़ कितने लिए इनमें से? मैंने कितने पकड़ लिए इनमें से? 90। तो इसका मतलब परसेंटेज में देखने लगो तो इसका मतलब नेगेटिव क्लास तो 100% हो गई जज, स्पेसिफिसिटी 100% आ रही है। हाँ सही बात है, नेगेटिव क्लास का तो सारे पकड़ लिए ना इसने, क्योंकि ये सबको ही नेगेटिव बता देता है। जब ये सबको ही नॉन डिफॉल्टर बताएगा तो जितने नॉन डिफॉल्टर थे वो तो सारे पकड़ लेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो गॉट द आइडिया। तो नॉट एक्यूरेसी अलोन, वी चेक इट विथ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। हाँ सबको नॉन डिफॉल्टर बताता है ना जयंत। हाँ अरे प्रॉब्लम समझो, ये सबको ही नॉन डिफॉल्टर बताता है, जो डिफॉल्टर आता है एक्चुअली, जो डिफॉल्टर आता है उन्हें भी डिफॉल्ट। अरे ये प्रिडिक्शन है, इसके कहने से उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा, जो आ रहा है वो तो वही करेगा जो करना है उसने। ये तो मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो करेगा क्या। हाँ जी, वापस रखूं वैल्यूज, क्या क्या थी हमारी कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स में? 120, 27, 17, 59। देखें, 120, 57, 70 और 20। ये अच्छा मैंने फॉर्मुलेट नहीं किया था इसको, तो दिस इज पॉजिटिव क्लास के टोटल डिसीजंस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्लास के करेक्ट डिसीजंस। अच्छा 59 है।
कुछ गलत क्लिक किया क्या मैंने? 120 27 59, अच्छा नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेते हैं। हाँ जी, नाउ यू आर अप टू समथिंग। चल गया पता? कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स से कैलकुलेशन करना आ गया, समझ जाओगे। मतलब अभी एकदम से नहीं आया हो तो रिकॉर्डिंग देखना, करके देख लेना, बट यू गॉट द आइडिया। तो एक्यूरेसी देखने में 80% लग रहा है, अच्छा है। स्पेसिफिसिटी 87। जब स्पेसिफिसिटी एक्यूरेसी से हाई है तो समझ जाना सेंसिटिविटी कम आने वाला है। सेंसिटिविटी ओवरऑल एक्यूरेसी से ज़्यादा दिखे तो समझ जाना स्पेसिफिसिटी खत्म आने वाली है। तो एक्यूरेसी देखने में 80% लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं देखूं सेंसिटिविटी, सो देन इट गिव्स मी अ रेड मार्क बिकॉज इट मीन्स माई मॉडल इज नॉट वेरी पावरफुल एट प्रेडिक्टिंग द वंस। जो सर्वाइवल थे उन्हें पकड़ने में इतना एफिशिएंट नहीं है मेरा मॉडल। जीरो तो पकड़ रहा है बहुत अच्छे से, 87 दिखा रहा है स्पेसिफिसिटी, लेकिन सेंसिटिविटी खराब है, यानी वन पकड़ने में इतना एफिशिएंट नहीं है। देख लो, वो नंबर देखते ही पता चल रहा है, नंबर देखते ही पता चल रहा है। टोटल कितने थे? 27 प्लस 59 जितने भी थे, और उनमें से कितने पकड़ पाया? 59। जीरो की कहानी सही है, 120 प्लस 17 टोटल इतने थे, उनमें से 120 पकड़ भी लिए इसने। सो फार सो गुड, गॉट द आइडिया। करना क्या है अब? यहाँ तक समझ आ गया? अभी क्वेश्चन है कि करना क्या है। देख ही रहे हो सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, तो करना क्या चाहिए? डेटा तो अच्छे से क्लीन किया था, मॉडल भी ठीक से ही बनाया था, सारी चीज़ों का तो ध्यान कर लिया हमने। नाउ अगेन रिमेंबर, तुम्हारे मॉडल ने आउटपुट में 01 नहीं दिए थे, ये 01 तुमने बनाए थे। अगर ये 01 गलत बन गए हैं, इसका मतलब गलती तुम्हारी है, मॉडल की नहीं है। मॉडल ने तो प्रोबेबिलिटी बताई थी। अरे कहाँ जा रहे हो कहानी में? आओ तो सही, देखो तो सही, कुछ और बता रहा हूँ। यस और नो? अरे किसने बोला था 50% रखनी है कट ऑफ? नहीं आ रहा याद? ये याद है बाबूजी? देखो ये वाले बाबूजी, सिग्मॉइड भाई, इन्होंने बताई थी प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी हाई आ रही है तो ठीक है हम 1 कर लेंगे, इनकी कम आ रही है तो इनकी हम 0 कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। तुमने कहा हम कट ऑफ यहाँ ले लेते हैं 50% पे, तो ऊपर वाले सब तुमने 1 बोल दिए, नीचे वाले सब तुमने 0 बोल दिए। अब गलत क्या हुआ है? गलत नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा सेंसिटिविटी बता रहा है। थिंक अबाउट इट। ऐसे ही कुछ लोग जिनकी प्रोबेबिलिटी कुछ कम थी, 50 से थोड़ी सी कम थी, उन सबको तुमने कट ऑफ लगा के नीचे बता दिया, यानी 0 बता दिया उनको। यस और नो? यही हुआ है। ये लोग एक्चुअली 1 थे, तुमने प्रोबेबिलिटी 50 ली है, इसलिए ये सारे 0 बन गए प्रिडिक्शन में। एक्चुअली 1 थे। मेरा मॉडल ये कैसे बता रहा है सेंसिटिविटी कम दिखा के? वो सही कह रहा है कि 1 पकड़ने में काबिल नहीं हो तुम। ये लोग एक्चुअली 1 थे, कट ऑफ तुमने 50 ले लिया, इसलिए 0 बन गए। समझ आ गई बात? सही है। तो मैं कह रहा हूँ लेट्स प्ले अ ट्रिक। अगर मैं कट ऑफ थोड़ी सी नीचे ले जाऊं तो इन सबको, ये सारे 1 बन जाएंगे।
मेरा मॉडल ज़्यादा वन पकड़ लेगा। सही बात, सही बात है कि नहीं? हाँ, नुकसान क्या होगा? कुछ लोग जो एक्चुअली 0 थे और हमने 50 कट ऑफ लगा के हमने भी 0 बोला था, वे 0 अब 1 बन जाएँगे कट ऑफ नीचे ले जाने से। तो स्पेसिफिसिटी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। हाँ, तो हो जाए। स्पेसिफिसिटी तो बहुत है मेरे मॉडल की, 87%। सेंसिटिविटी खराब है, मेरे को वो ठीक करनी है। तो सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ हियर। नाउ बाय थंब रूल, अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड, हमारी कोशिश क्या रहेगी? वी विल ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बराबर हो जाएँ। मतलब नॉट एग्ज़ैक्टली बराबर, लेकिन आस-पास आ जाए। 1-2% का डिफरेंस होगा चलेगा, लेकिन आस-पास तो आ ही जाए। अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड। देखते हैं कैसा करेंगे। हाँ, तो कर लो, अब तो पता है तुम्हें। मैं क्या कह रहा हूँ, कट ऑफ थोड़ी नीचे ले जा रहा हूँ, अभी तक क्या थी? 50%। मैं कह रहा हूँ 35% पे ले आओ। और कुछ नहीं बदला है। और कुछ नहीं बदला है, डेटा भी वही है, मॉडल भी वही है, सिर्फ और प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटीज भी वही हैं। जस्ट कट ऑफ चेंज किया है कि 0 1 में कहाँ से कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई एम चूजिंग 35%, एंड इफ आई डू दैट, व्हाट डू यू सी? व्हाट डू वी सी? कट ऑफ द पावर। हाँ, इस time. This time I have chosen a cutoff of 35% rather than 50%। कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स में डेटा देखोगे थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मेरे 1 ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। पहले 59 थे, नाउ दे आर 69। 0 थोड़े से कम हो गए हैं, पहले 120 थे, नाउ दे आर 110। ओवरऑल एक्यूरेसी अभी भी 80% ही है। बट इफ आई सी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, नाउ माई मॉडल इज इक्वली कैपेबल टू प्रेडिक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लास। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक सब कहानी समझ आई? क्या किया और क्यों किया है? सब चीज़ें, एवरीथिंग इन प्लेस? It's high time that you people start practicing and revising. I see you people are, uh, I can feel that, I can sense that, which is concerning. Don't, please don't slack behind. It is high time that you pull up your socks and start going forward. We are very close to end our module. Next comes Python. तो ये सब रेडी होगा तो पाइथन करने में मजा आएगा वहाँ पर। नॉट कोडिंग, कॉन्सेप्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वहाँ पे अगले पाइथन ट्रेनर को परेशान करोगे तुम, ये क्या था, वो क्या था, वो मेरे को पूछ लेगा क्या पढ़ाया, क्यों छोड़ दिया इतनी जल्दी। आई हैव ट्राइड टू बी वेरी थॉरो इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सो फार। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक बात हो गई, अब मेरे को सब चीज़ मालूम है। माई मॉडल इज वेल बैलेंस्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लास। कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स ठीक आ रहा है।
मॉडल बन चुका है, मॉडल वैलिडेट हो चुका है। व्हाट कम्स नेक्स्ट? हाँ जी, अब टाइम आता है हमारा प्रिडिक्शन देने का। कैगल ने हमसे प्रिडिक्शन मांगा है ना, हमारा क्लाइंट कौन है? कैगल इन दिस केस, यस और नो? उन्होंने बोल रखा है ना हमें कि प्रिडिक्शन बताओ जरा करके। वो कहाँ पे करना है? टेस्ट डेटा सेट पे, जहाँ हमें नहीं पता कि सर्वाइवल हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक तो हम इतनी कहानी कर रहे थे, अभी तक हमने मॉडल बना के देखा और वैलिडेट किया है कि हमारा मॉडल ठीक ठाक बन भी गया है कि नहीं बन गया है। अब हमें पता है सारी चीजें ठीक ठाक। नाउ वी आर प्रिडिक्टिंग ऑन टेस्ट डेटा सेट जहाँ पर प्रिडिक्शन मांगा गया है। तो अगेन आई एम क्रिएटिंग अ prop column in test dataset here, predicting with logistic 2 model. New data is test this time and type is equal to response. Tell me quickly why type is equal to response. थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। Everybody should rush to this. Why there is a parameter type? I am setting it to response. हाँ जी, याद आ गया? अगर नहीं करूंगा तो डिफॉल्ट आउटपुट लॉग ऑफ ऑड्स आता है। मेरे को ऑड्स और लॉग आउट से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ सीधे प्रोबेबिलिटी बताए। तो नाउ आई हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेस्ट डेटा सेट जो मेरे मॉडल के प्रेडिक्शन से आई हैं। एक्चुअली क्या होगा वो तो पता नहीं अभी, लेकिन प्रोबेबिलिटी आ गई। आइडियल कट ऑफ क्या रहेगा वो भी पता चल लिया। आइडियल कट ऑफ क्या है? अभी तो देखा 35% पे बैलेंस आ जाता था। तो आई एम सेइंग टेस्ट के सर्वाइव्ड कॉलम में, जो सर्वाइव्ड कॉलम अभी तक एन ए था, अभी तक एन ए था ना सर्वाइव्ड कॉलम, मतलब स्टार्टिंग में तो था ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ सर्वाइव्ड कॉलम पे ले आओ, प्रोबेबिलिटी अगर 35 से ज़्यादा है तो 1, अदरवाइज 0। तो दिस बिकम्स माई प्रिडिक्शन। तो इन लोगों के लिए मेरा प्रिडिक्शन आ चुका है, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। एक्चुअली क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता। बढ़िया, चलते हैं सबमिशन करने। हाँ, तो सबमिशन क्या करना था? सबमिशन कैसे करना था? देखा था वो भी आप लोगों ने? हर एक सबमिशन फाइल उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था मेरे को, वहीं हैकाथॉन पे अवेलेबल है, डाउनलोड किया होगा तो आप लोगों ने, है ना? उन्होंने क्या बोला था, एक CSV फाइल में हमें सबमिशन भेज दो, क्या लिखना है कि कौन तो पैसेंजर था और तुम्हारे मॉडल के हिसाब से उसका हुआ, सर्वाइव्ड और नॉन सर्वाइव्ड, दो बातें बतानी है, बाकी कहानी मत बताओ हमें। राइट? तो इसी सिंटेक्स में हमें एक फाइल चाहिए। सो हाउ वी आर डूइंग इट? CSV रीड करने के लिए क्या होती है? रीड डॉट CSV। अब मैं CSV राइट करना चाहता हूँ, तो राइट डॉट CSV। आई वॉन्ट टू राइट, व्हाट डू आई वॉन्ट टू राइट? टेस्ट डेटा सेट के दो कॉलम। हाँ, दो ही कॉलम चाहिए, पैसेंजर आईडी और सर्वाइवल जो मेरा प्रेडिक्शन आया है 0 1। सो इन दोनों को राइट कर दो। इस फाइल का नाम क्या होगा? सिमिलर जैसे रीड करते थे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते थे कंप्लीट फाइल विद एक्सटेंशन नेम, वही लिख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इस फाइल का नाम बोलो सबमिशन एंड इट इज अ डॉट CSV फाइल एंड देन देयर इज एक्स्ट्रा पैरामीटर रो नेम इज इक्वल टू फॉल्स। अगर ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, अगर ये ट्रू रह गया तो देख लेना करके क्या होता है, कुछ गलत हो जाता है। आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट। और जब ये मैं राइट करूंगा तो ये एक फाइल राइट हो जाएगी, CSV फाइल कहाँ पे, कहाँ राइट हो जाएगी? कैगल पे। अरे कहाँ गया है डेटा सेट? हाँ, सिस्टम तो ठीक है, सिस्टम में कहाँ? वर्किंग डायरेक्टरी। रिमेंबर, बहुत शुरू में ये भी बात की थी हमने। आर सॉफ्टवेयर आपके पूरे मशीन पे सिर्फ एक फोल्डर से बात करेगा, विच वुड बी द वर्किंग डायरेक्टरी। करेक्ट, बात की थी हमने। तो करेंटली माई वर्किंग डायरेक्टरी इज DSPR इन डी ड्राइव। तो देखें क्या हुआ है वहाँ पे, कुछ आ गया है क्या? डी ड्राइव पे DSPR फोल्डर,
कोई सबमिशन नाम की चीज आई है क्या यहाँ पे? हाँ, आ तो गई है। आओ चलें क्या कल पे सबमिशन डाल के देखते हैं। वी रीच टू कैगल। हमारे पास कहाँ कंपटीशन कर रहे थे हम? कोई सा डेटा सेट पे compete कर रहे थे, द टाइटैनिक वन। हियर इट इज। When I come to this, here we see submit predictions. Let's go to submit predictions. And here is the upload tab. You can drag and drop or you can choose the pop-up. By any means, you can do. उठा के पटकते हैं, मजा आएगा। So I have uploaded that submission.csv. It will take a few seconds. Then there is, you can use a brief description for yourself, not for anybody, so that I can remember that I did this submission with logistic regression and 35% cutoff, so that I can tweak my model, I can tweak cutoff to improvise later. And let's make submission. ठीक है, हमने किया submission. I have 9 submissions left. So every day you can make 10 submissions. So pretty lenient. और हम देखें तो हमने जो सबमिशन किया है, I have submitted it just now 0 seconds ago and my score is 72%. Let's see my position on leaderboard. तो देखते हैं हमारी पोजीशन क्या आई है इस स्कोर के साथ। तो my submission score is this much and my rank is, हाँ जी, my rank is 159। ना 159, उसके आगे वो 3 डॉट दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ, तो ये रैंक उतनी है जितनी आईआईटी में आई थी हमारी। It is not 159, it is actually 15,000 something. But anyway, ठीक है, but you got the idea. So this is the way you will compete in hackathons. इसमें इससे अच्छा क्या होगा? अरे अभी एक मॉडल सीखा है तुमने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग। हो सकता है तुमने कुछ अभी डेटा एनोमली छोड़ दिया है, जो ट्रीट करना चाहिए था नहीं किया है। हो सकता है तुमने डेटा एनोमली ट्रीट करते करते कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। You have tried logistic regression, maybe you could have tried random forest or decision tree or some other model. तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मे बी हमने जो अभी कट ऑफ में ट्वीक आउट किया है, हो सकता है वो देखने में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो तो बैलेंस हो गई क्योंकि वैलिडेशन कर रहे थे। अवेलेबल डेटा पे तो कर सकते हो, टेस्ट डेटा में तुम्हें क्या पता? यू हैव जस्ट ट्राइड व्हाट यू कुड डू बेस्ट, बट नाउ देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन ट्वीक आउट। ये देख रहे हो, ये रैंक नहीं है, ये स्कोर्स हैं। सो दीज आर नॉट बिकॉज ऑफ रिग्रेशन। किसी ने तो पूछा था कि ये आर स्क्वायर्ड से कर रहे हैं क्या? तो इट हैज नथिंग टू डू विद आर स्क्वायर्ड, इट इज एक्यूरेसी जो आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स से निकाली। ठीक है, ये पता कहाँ से चलेगा? देखो यहाँ पे सारे में रूल्स एटसेट्रा, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द मेजर ऑफ एक्यूरेसी, वो लोग किस चीज से मेजर कर रहे हैं कि आपका स्कोर कितना आएगा। तो वो सेंसिटिविटी भी हो सकता है, एक्यूरेसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यू सी द लीडर्स, जो टॉप 10-20 रैंक्स हैं, देयर स्कोर देख रहे हो उनका? 1 1
यानी 100% करेक्ट डिसीजंस. वेल, डोंट वरी अबाउट दैट फॉर नाउ, क्योंकि देयर आर मेनी एल्गोरिदम्स व्हिच यू आर येट टू लर्न, और ये कोई आखिरी हैकाथॉन नहीं है दुनिया का. maybe you can connect with them. तो जस्ट एक्सप्लोर, देखो ना. मुझे नहीं पता, अगर इन्होंने पब्लिक किया होगा तो हो सकता है मिल जाए. बहुत सारे लोग अपनी अप्रोच पब्लिक कर देते हैं कि उन्होंने किया क्या. कुछ लोग अपना कोड भी दे देते हैं just for community. So just explore around, and any day you can connect with them, these people. So Kaggle is not only just to compete, it is also there to connect. तो जैसे तुम्हारा प्रोफाइल बना है ऐसे ही उनका भी प्रोफाइल बना है. अरे कोड में बड़ा इंटरेस्ट है, भेज दूंगा कोड. अगर आ गया होगा ना तो कोड तो कर लोगे अपने आप. ढूंढ लोगे कैसे कर. ये पता होना चाहिए कर क्यों रहे हो. You know about everything in life, why is the bigger question. How is something you will explore once you have decided why. So it is not only related to data science. It is for everything. इतना ज्ञान उछलता क्यों हूं मैं. चलो काम की बात करते हैं, छोड़ो इसको. तो दैट्स कैगल. यहाँ पर कोई और हैकाथॉन पकड़ सकते हो आप. बहुत सारे एक्टिव हैं. देखो जो प्राइज मनी वाले हैं वो तो अभी काबू में नहीं आएंगे आप लोगों के, बिकॉज दे इन्वॉल्व डीप लर्निंग, बिग डेटा, बहुत सारे टूल्स उसमें, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टूल. हो सकता है कि एक टूल से बात भी ना बने. You may have to apply different variety of tools. So don't go there, but you can do these kind of things like knowledge. You see this one, house prices. पकड़ लो इसको. I know this house price hackathon because it is a good problem and it was actually hackathon once. इस पे हैकाथॉन कराया था, आई थिंक किसका आइकन है वो, सैंटेंडर आई बिलीव. हैव यू हर्ड ऑफ नेम सैंटेंडर. सैंटेंडर, it is a UK based MNC. उन लोगों ने, so this was a real time hackathon which they hosted, and then after that जब उन लोगों का काम हो गया, they were looking for professionals and they used this hackathon for hiring purpose. यहाँ से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे those who stood nice and जिनका अप्रोच उनको अच्छा लगा, they shortlisted them. Maybe आगे क्या हुआ I don't know, maybe they interviewed and maybe finally hired. After that they made this data available to public. Again, just for community. So what I mean to say is this is kind of a practical problem. ऐसे हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट करोगे तो दे ब्रिंग सर्टेन वेट टू योर रिज्यूमे. ठीक है जी, यू गॉट द आइडिया. शुरू करेंगे अपने आप से करना. नाउ आई एम नॉट इन्वॉल्विंग एनीथिंग एल्स. नाउ योर हैंड्स आर ओपन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट. आई एम जस्ट गाइडिंग यू टूवर्ड्स दैट. अभी एक हैकाथॉन ये वाला बोल रहा हूँ, एक और प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करूंगा कल. ठीक है, बट नाउ इट इज एंटायरली अप टू यू कि अब आप लोग कैसे पढ़ेंगे. तो नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मी, फ्री फ्रॉम हिमार्टिकस. कुछ लोगों ने पूछा था स्टार्टिंग में कि हमें प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट कहाँ से मिल सकता है. अब समझ गए कहाँ से मिल सकता है. करते रहो. So start marking your presence on Kaggle. Start with this house prices hackathon. आगे और बताता रहूँ.
So with this, let's wind it up for today. I think enough for one day. है ना, हैंग तो नहीं हो गया आज? चलो ठीक है. But guys, start investing time on your own. So now things are pretty open-ended. Now it is entirely up to you that how much time you can invest and how much practice you can keep up with. I'll send across the entire code जो आज रन किया है, पूरा का पूरा code in one go, in one file. I'll send it to you from end to end. Okay, very well, guys. Bye bye and take care. I'll see you tomorrow, same time. Very well, guys. Signing off. Very welcome. Bye.